Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5, which is magnetism, means magnetism and matter. Magnetism, or we can say magnetism and matter. Alright. Here we are going to study about magnetism in a bar magnet or a solenoid. A solenoid means a wounded coil made of copper wire or any other conducting wire. Also behaves as a magnetic field. Also behaves as a magnet. And magnetism in some other cases, like when electron revolve in an atom, it also produces magnetism. All right, so this we are going to study. So firstly we will talk about what is magnetism or what are magnets. A magnet is a material that has both attractive and directive properties. All right, so you must have studied magnet in class 10th also. So we will not study basic of this magnetism. This basic of magnetism you have to revise on your own. We will start with our specific topic, that is in our class 12 course, just because it is reduced in this session. So we will start with magnetic dipole. Alright, so what is magnetic dipole? As you know, magnet has two poles. Alright, one is north and other is south. So every magnet has at least two poles. One is south, other is north. You have never seen any north pole alone or any south pole alone. But in electricity, the fundamental or the simplest structure that can exist is a point charge. Means a point charge can be seen in electricity, but you will never see an isolated north pole or an isolated south pole. All right, so two equal and opposite charges makes an electric dipole. This you have studied in your first chapter as well as second chapter also in some cases. So you have seen two equal and opposite charges, when separated by a very small distance, they produce electric dipole. Similarly, an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole. It is described by a magnetic dipole moment M. As you have seen a small p electric dipole moment in our first chapter, that is electric charges and fields. When we were studying about electric dipole, we have studied about a small p vector, that is electric dipole moment. The direction of that is electric dipole moment was from negative charge to positive charge. It means that electric dipole moment was also a vector quantity. Similarly, here an arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole. Here it is described by a small m, that is magnetic dipole moment. ये इसको describe करेगा. Alright, so हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक पोल अकेले नहीं रह सकता, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा. एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल दिखता कैसा है? हर उसमें दो पोल्स होंगे जिनके बीच में कुछ दूरी होगी. एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. सिमिलरली अ करंट लूप, ये तो पहला हो गया. अ करंट लूप
कैरिंग, और जो हमने करंट लूप लिख दिया तो ज़रूरत ही नहीं है, बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यानी अगर एक करंट किसी लूप में फ्लो कर रहा है तो वो भी एक मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा, जिसका नॉर्थ पोल होगा, जिसका साउथ पोल होगा, और वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक लूप में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ऐसा हमने फिजिक्स में कहाँ देखा है, एटम के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोज लूप में मूव कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में सर्कुलेटरी पाथ में मूव करते हैं वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका अच्छा एग्जांपल, अब देखिए कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे आएगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चक्कर काट रहा है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जब मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। ये याद होगा आपको, मैं आपको याद भी दिला दूं, ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा कि एक वायर में करंट फ्लो कर रही थी ऐसे, ठीक है, तो हमें उसकी एक्सिस के पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, जो कि इस डायरेक्शन में निकाला था एक्सिस के अलॉन्ग। अगर ये दूरी r थी, ठीक है, इस पॉइंट P पॉइंट में मैग्नेटिज्म इस करंट के कारण, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये दूरी कुछ x थी और ये रेडियस जो थी वो a थी। तो आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था B = μ0 I a² अपॉन, जहाँ तक मुझे याद है, 2r² + a² होल टू द पावर 3/2। अगर n इस तरह के n टर्म्स थे तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो गया था। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। इसका मतलब जब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो क्वांटिटी हमने पढ़ी सुनी अभी तक, उसका क्या रोल है, वो क्या है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल is defined as the product of its pole strength and magnetic length। अब ये क्या चीज़ है, देखिए एक एग्जांपल बनाते हैं। ये हो गया हमारा QM, ये हो गया हमारा QM। अब ये QM क्या है, ये चार्ज नहीं है, मुझे ऐसे बनाना चाहिए। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये है बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये एक बार मैग्नेट है। अब समझिएगा कि QM अभी भूल जाइए, अभी ये समझिए कि यहाँ पे आपको पता है कि जैसे जैसे ये बार मैग्नेट है तो हम जितना इसके करीब आएंगे उतना इसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा ये। और जैसे जैसे दूर जाते हैं इस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इस पर्टिकुलर पोल के पास सबसे ज़्यादा, इस पर्टिकुलर पोल के पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा डेंस होती हैं, है ना, यहाँ साउथ पोल में अंदर जाती हुई और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई। तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक कन्वेंशन माना गया है कि इस पर्टिकुलर पोल की एक पोल स्ट्रेंथ है। क्या है, पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब जैसे वहाँ पे चार्ज यूज़ करते थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि Q चार्ज रखा है, -Q चार्ज रखा है, वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि वो पोल है उसकी अपनी स्ट्रेंथ है QM। और ऑब्वियस है कि जितनी QM इधर होगी उतनी ही क्वांटिटी QM इधर होगी। लेकिन अगर एक को हमने निगेटिव कह दिया तो दूसरी पॉजिटिव, एक को निगेटिव कह दिया तो दूसरी पॉजिटिव, मीन्स हैविंग अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। तो QM इधर की होगी तो QM इधर की भी होगी, क्यों, क्योंकि दोनों में स्ट्रेंथ सेम होती है, तभी वो एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट फॉर्म करते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसी भी पर्टिकुलर पोल की, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की, तो QM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई चार्ज नहीं है, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, Q से रिप्रेजेंट किया इसीलिए लास्ट में M लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइंड है,
magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as a product of its pole strength and magnetic length. अब मान लीजिए ये दूरी जो है इनके बीच की, एक साइड से L, तो पूरी दूरी अगर 2L है, लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, तो ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो डिफाइन होती है m इज इक्वल्स टू m वेक्टर इज इक्वल्स टू QM, एक पोल स्ट्रेंथ ले लो किसी भी एक को क्योंकि दोनों ही सेम है, मल्टीप्लाइड बाय देयर स्पेसिंग और दी सेपरेशन 2L, बट इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो वहाँ डाइपोल मूवमेंट निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। लेकिन इसी तरह यहाँ पे नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन निकलती है, तो उसकी उल्टी दिशा में आप साउथ से नॉर्थ अंदर आप ये दिशा आप मान लीजिए ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। तो 2L ऐसे बना लो, 2L सेपरेशन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। किस तरफ 2L को किधर से किधर नापेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तब ये पॉजिटिव आएगा, वरना ये निगेटिव नहीं हो जाएगा अगर हम नॉर्थ से साउथ लेंथ नाप लें। तो QM इंटू 2L ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जहाँ पे M क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, 2L क्या है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल मेजर्ड इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, ये याद रखना, ठीक है। अब हम आगे इसको ये भी पढ़ेंगे कि इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या तो इसकी एक यूनिट और होती है जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, जहाँ टेस्ला क्या है, मैग्नेटिज्म की यूनिट है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, उसको हम देखते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ही प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे वाइवा हो, ठीक है, या इवन इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए जब हम क्लास 10th में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमें डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। मीन्स इट इज़ नथिंग बट द कर्व विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी दैट इज, अब मैग्नेटिक लाइंस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन बताती है। ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स may be defined as the curve tangent to which, ऐसा कर्व जिसका tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point, or the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so। अब इसकी समझ के लिए क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लिया, छोटा सा समझाएंगे आपको रिवीजन के लिए क्योंकि ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। फील्ड लाइन आपको पता है नॉर्थ से साउथ ऐसे जाती है, क्लोज्ड कर्व होती है, यानी अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आएगी, ठीक है, ऐसे ये, और अंदर भी रहेगी इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह इधर से ये, इसी तरह इधर से ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि फील्ड लाइंस जो हैं ये अंदर भी होती हैं और मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ। ये हमने बेसिक अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो डेफिनेशन हो गई। प्रॉपर्टी पहली, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोज्ड कर्व्स। देखिए ये सारा ही PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर्टीज़ आपको याद भी रखनी है। क्लोज्ड कर्व होती, ठीक है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है कि निगेटिव से पॉजिटिव से स्टार्ट और निगेटिव चार्ज पे ख़त्म, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड लूप। और यही कारण है कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, वरना क्लोज हो ही नहीं पाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ऑब्वियस है, जहाँ क्रॉस करेंगी वही बात है, जहाँ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ एक, मान लीजिए अगर यहाँ क्रॉस कर रही हैं दो फील्ड लाइंस, ये ऐसे, यहाँ मैंने एक ले जाके मैग्नेटिक नीडल रख दिया,
अब इसके सामने संकट आ गया कि ये किधर की ओर ओरिएंट करे, यानी फोर्स की डायरेक्शन दो हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। ये नीडल अगर हमने रखा, नीडल मैग्नेटिक नीडल, तो ये दोनों तरफ ओरिएंट तो कर नहीं सकता, दोनों तरफ जा नहीं सकता, सो दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये प्रोसेस नहीं हो सकता। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, मतलब ये जो मैंने तिरछा मिर्छा बना दिया है इसको हमेशा कैसा होना चाहिए, इट ऑलवेज मस्ट बी नॉर्मल, दिस मच। नाउ नेक्स्ट इज द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये मैंने कभी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, यानी मैग्नेटिक लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो भी होती हैं, ये एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड की तरह बिहेव करती हैं। जैसे आके एक रबर बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच करिए तो आप वो क्या चाहेगा, अपनी लेंथ को छोटा करना चाहेगा। इसी तरह ये फील्ड लाइन्स होती हैं, ये हमेशा अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती हैं, और यही कारण है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये दूसरी फील्ड लाइन से मिल के, मान लीजिए अगर मैं एक बार मैग्नेट ऐसे यहाँ पे रख दूँ और इसका नॉर्थ यहाँ रख दूँ, इसका साउथ यहाँ रख दूँ, तो ये जो फील्ड लाइन यहाँ से निकली, ये दोनों जुड़ के टोटल फील्ड लाइन यहाँ से निकलने लगेंगी और यहाँ को जाने लगेंगी, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, बाकी बीच वाला पोल गायब हो जाएगा। इसीलिए ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं, जो किसी भी तरह अपना सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना चाहती हैं, अपने आप को खींच लेना चाहती हैं, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रही हैं तो एक दूसरे को कट भी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द रिलेटिव डेंसिटी द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ। मीन्स जितना पास यहाँ पे फील्ड लाइन्स करीब दिख रही हैं, यानी यहाँ फील्ड ज़्यादा है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ फील्ड कम है। फील्ड लाइन्स की संख्या एक यूनिट एरिया में अगर ज़्यादा है तो उस जगह फील्ड ज़्यादा होगा, फील्ड लाइन्स की संख्या कम है, रेयर है, तो फील्ड कम होगा। ठीक है, तो ये हो गई फील्ड लाइन्स की बात, जिसके बारे में हम आपको PDF में सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये करंट है, वो अगर एक किसी लूप में फ्लो कर रहा है तो वो एक करंट लूप बना रहा है। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। कैसे होता है, अब इसी को हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पिछली क्लासेस का जो हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, नहीं थर्ड चैप्टर में शायद, तब मैं आपको वो बता रहा था कि करंट जो है वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, जो ऐसा मैंने अभी आपको आज भी बताया कि ये करंट लूप है, इसकी एक्सिस ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन अगर ये एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, इसकी लेंथ A है, रेडियस मतलब इस सर्कुलर लूप की ये I से इसमें करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट आ रही है, ऐसे को जा रही है। ठीक है ना, तो R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B = μ0 IA² अपॉन 2R² प्लस A² होल टू द पावर 3/2। कोई इशू नहीं था, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आप इसको रिवाइज करिए। अब देखिए, अगर ऐसा केस है, अगर मान लीजिए ये R, ये जो दूरी है P पॉइंट की हमारे लूप से, ये बहुत बड़ी हो, यानी R इज़ मच ग्रेटर देन A, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, हमारा B जो होगा वो क्या होगा, μ0 IA² 2, just because R is much greater than A, so only R² will survive, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, it will be μ0 IA² by 2R³। इक्वेशन A, यही हमको चाहिए था। B कितना हो गया, μ0 IA² अपॉन 2R³। ठीक है, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके कारण है, उस करंट लूप के कारण। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर A उसकी रेडियस थी करंट लूप की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप
पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, है ना। आई करंट बह रही है इसमें, तो मैंने क्या किया, इसमें ए के फॉर्म में मैं एरिया ऑफ लूप में ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाई ए स्क्वायर, कैपिटल ए से। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या म्यू नॉट आई रहने दूँ, ए में पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ, पाई मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल ए, पाई ए स्क्वायर को ए, और वही पाई नीचे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब इसके बाद क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे, ऐसा ये सब कर क्यों रहे हैं। म्यू नॉट मैंने 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2ia बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, क्यों बनाया है इसको अब हम देखते हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसको इक्वेशन इसको मैंने पहले इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है ना, जो मैंने ए लिख दिया था इक्वेशन को, इक्वेशन 1 कह दिया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको अगर याद हो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने डाइपोल, एट एन एक्सियल पॉइंट, आप इसको रिवाइज भी करिएगा, लाइंग फार अवे। एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई किसी एक्सियल पॉइंट पे नापा जाता है, यानी आपको याद दिलाऊं, एक डाइपोल ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, ठीक है ना, डाइपोल, या ऐसे इसको मुझे लाइन नहीं खींचना चाहिए था, मुझे केवल ऐसे 2 पॉइंट दिखाना चाहिए था। तो इसके इस पोजीशन पे बहुत दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने निकाला था, रिवाइज करिएगा, इट इज़ इक्वल्स टू E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। ये अगर आपको याद हो तो इक्वेशन 3, 2p/r क्यूब। ये जो था यहाँ p क्या था, वेयर p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना। तो अब देखिए इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करना है। देखिए ये दोनों लगभग एक जैसी हैं, अंतर क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट, यहाँ एक कांस्टेंट सिमिलरिटी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में, आर क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी, डिस्टेंस आर क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी, 2ia और यहाँ पे 2p, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए 2ia को, तो यही हम लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग दिस इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब देखिए, ऑन कंपेयरिंग 3 and 2, both B and E are proportional to 1/r cube। इतना तो हो गया। This suggests that circular current loop behaves as a magnetic, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। हैविंग वैल्यू m इज इक्वल्स टू, यहाँ m नाम दे रहा है किसको, ia को, ठीक है ना। और अगर इन वेक्टर नोटेशन करें, वेक्टर m वेक्टर इज इक्वल्स टू i तो स्केलर है, a वेक्टर, यहाँ a क्या है, एरिया ऑफ द लूप। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, टाइम की कमी है। ये एक सर्कुलर करंट लूप फ्लो कर रहा है जिसमें करंट IS से। अब आप देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। देखिए ये कैसा एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक मोड़ लीजिए अपनी उंगलियों को, तो अंगूठा ऊपर, यानी अगर हमारा इस तरह से करंट बह रही हो किसी सर्कुलर पाथ में, एंटी क्लॉकवाइज बह रही हो, सर्किल होना ज़रूरी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज होना ज़रूरी है। तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वाली दिशा ये हुई,
इस दिशा में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई है, एरिया वेक्टर की इस एरिया के, जिसका एरिया क्या है, ए है, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इसी दिशा में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। तो करंट लूप बिहेव्स लाइक ए करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ तक सब सही है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करी गई NI A, पूरा NI को हम पहले नाम दे देते हैं I इंटू N। ये क्या है, कितने टर्न्स हैं, टर्न्स हैं N, मान लीजिए इस तरह के N नंबर ऑफ टर्न्स होते, तो NI करंट के कितने टर्न्स N, तो इसको कहा जाता है एम्पियर करंट्स, एम्पियर टर्न्स, ठीक है, एम्पियर टर्न्स। तो NI एम्पियर टर्न्स हो गया। तो यहाँ पे अब हम एक जो अपना M इक्वल्स टू मान लीजिए N टर्न्स हैं, इफ N टर्न्स आर देयर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू NIA हो जाएगा, यानी M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई लूप एरिया, ए भी तो है ना, यानी NI मल्टीप्लाइड बाई ए। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसकी डायमेंशन अगर हमें निकालना हो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलिए या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलिए, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न्स, यानी इसको क्या कर लें, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, देखिए एम्पियर टर्न्स है, नंबर से तो मतलब है नहीं कि चार बार करंट है कि 6 बार, वो तो एम्पियर में ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई लूप एरिया L स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AL स्क्वायर, लेंथ है ना, लूप एरिया यानी मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट बताई, डायरेक्शन कैसे निकाली, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। ये याद रखिएगा कि मैंने डायरेक्शन कैसे बताई है इसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या ये बताने की कोशिश है कि एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। ऑलराइट, थैंक यू।